Good morning. Yesterday we completed with the chapter. कोई problem उसमें बचा तो नहीं? All the problems are completed. Now today we start with new chapter, that is capital structure and decisions. Next chapter we are starting capital structure and decisions. Capital structure and decisions. Look, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? We have learned that what are the basic objectives and the functions of the finance manager. And what we have learned otherwise than this, we have learned is that the business risk and financial risk. This we have learned that in any business हमारे पास में कितने तरीके की रिस्क है? दो तरीके की रिस्क है. Means primarily दो है. One is the business risk and another is financial risk. अब ये सारी चीजें हम क्यों यूज करने वाले हैं? Because ultimately हमारे को क्या डिसाइड करना है? We have to decide our capital structure. अब जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में कितने बेसिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कितने हैं? वी आर हैविंग 3 बेसिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल, अनदर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड थर्ड वन इज डिबेंचर्स. अब यहाँ पे जब हमारे को कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, देन वी आर हैविंग 3 कंसिडरेशंस ऑल्सो. One consideration is the risk, another is the cost, and third one comes as the control. These are the 3 basic consideration. तो हमारे पास में कितने sources हो गए? We have got 3 basic sources. One is equity share capital, other is preference share capital, and third one is debentures. तो जो हमारे पास sources आ गए, one is equity share capital, preference share capital, and third one is debt or डिबेंचर्स हियर. एंड हमारे पास में 3 कंसिडरेशन है इन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. वन इज रिस्क, अनदर इज कॉस्ट, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल. सो वन इज रिस्क, अनदर इज कॉस्ट, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल. नाउ अब यहां क्या होनी है पोजीशन हमारे पास में? हाउ द पोजीशन वी आर गोइंग टू हैव. Look, when it comes to the equity shares का basic characteristics क्या है? The basic characteristics of the equity shares. क्या कब principal pay होना है? In the event of winding up. Look, जब तक कंपनी बंद नहीं हो रही है तब तक कंपनी की कोई भी obligation नहीं है principal वापस करने की. So in that case what happens? The principal has to be repaid only in the event of winding up, and whether the dividend is the obligation on the company. Whether the dividend is the obligation on the company, dividend is also not the obligation on the company. अगर चाहे कंपनी तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, नहीं चाहेगी तो कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी. और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिविडेंड की ऑब्लिगेशन क्यों नहीं है. बिकॉज इन केस ऑफ द कंपनीज वी आर हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटीज. The shareholders are having limited liability. Shareholder की liability limited है. And अगर shareholders की liability limited है, then in that case what is going to happen? कि अगर loss है तो loss shareholder से recover नहीं किया जा सकता. अगर loss recover नहीं किया जा सकता तो उस पर profit का भी right नहीं बनता है ना. Partnership firm के केस में अगर firm को loss हुआ तो उस लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे पार्टनर्स की है. हम क्या करते थे? पार्टनरशिप अकाउंट बनाते टाइम पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया, लॉस आया, सब कहां ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. तो अगर प्रॉफिट है, दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इवन इफ देयर इज अ लॉस, दैट लॉस विल आल्सो बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो दे आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉस ऑल्सो. अगर वो लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो प्रॉफिट में भी उसका राइट बनता ही है ना. हमारे को सोचने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट पार्टनर को देना है या नहीं देना है.
profit will be given to the partners. Is this clear? क्यों? क्योंकि loss can be recovered from partners, but in case of the companies, loss recover नहीं करा जा सकता shareholders से, because the shareholders are having limited liability. तो अगर shareholders से loss recover नहीं किया जा सकता तो उसका profit पे भी absolute right नहीं होता है. Then this is the decision of the management whether they wish to give the dividend or not. तो क्या basic characteristics हो गई? In case of the equity share, principal equity share capital की जब हम बात कर रहे हैं, in case of the equity share capital, principal कब पे होना है? Principal repayable in winding up. ठीक, in winding up. ठीक, then क्या डिविडेंड ऑब्लिगेशन है कंपनी की? डिविडेंड इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी. डिविडेंड नॉट ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी. तो सोच के देखो, एक बार तुम्हारे को पैसा मिल गया, यू आर रनिंग द कंपनी, यू हैव स्टार्टेड विद द कंपनी. अब तुम मेरे को बोलते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाऊं. ठीक, तो अब यहां पे ये बताओ कि एज ए कंपनी क्या तुम्हारे को मेरे को प्रिंसिपल वापस करना है? नहीं करना. डिविडेंड की भी कोई ऑब्लिगेशन है? नहीं है. तो पैसा मिल गया, बात खत्म हुई. कंपनी का प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में जब तक कंपनी बंद नहीं होती है तब तक मेरे को प्रिंसिपल वापस करने की ऑब्लिगेशन नहीं है. इवन लॉस है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं जा सकता. इवन इन केस ऑफ द प्रॉफिट it is not the responsibility or obligation of the company to distribute dividend. Look, Companies Act क्या बोलता है? Company can distribute the dividend out of profit after providing for depreciation. तो कंपनी किस में से डिविडेंड दे सकती है? प्रॉफिट में से, वो भी डिप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद में. एंड अगर लॉस है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा ही नहीं जा सकता, बिकॉज डिविडेंड है क्या? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट होना तो चाहिए ना. इज इट क्लियर? एंड बिकॉज शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो लॉस तो उनसे रिकवर किया ही नहीं जा सकता. तो अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्राइमरी कंडीशन है कि वहां पे प्रॉफिट होना चाहिए. अगर प्रॉफिट नहीं है तो वहां पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता. और लॉस है तो क्वेश्चन राइज ही नहीं. ठीक, सो प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट है तो ऑब्लिगेशन भी नहीं है. तो प्रिंसिपल भी वापस नहीं करना, डिविडेंड देने की भी ऑब्लिगेशन नहीं. तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कितनी रिस्क. कुछ भी रिस्क नहीं ना. रिस्क ही नहीं है. पैसा मिल गया कोई बिना किसी ऑब्लिगेशन के. इज इट क्लियर? सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल? अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखूं, तो कंपनी की रिस्क लोएस्ट है. रिस्क कैसी है? लोएस्ट है. इससे कम क्या रिस्क होगी? ना तो प्रिंसिपल देने की ऑब्लिगेशन, ना डिविडेंड देने की ऑब्लिगेशन. कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं. अगर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है तो यहां पे हमारी रिस्क कैसी हो गई? रिस्क इज लोएस्ट हियर. एवरीबॉडी हैज गॉट दिस. देन अब आ जाता है कॉस्ट. Cost is what? Basically, that is the amount payable for servicing that source is called as the cost. तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में तो कॉस्ट कंप्यूट करना आसान है. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स होता है. डिबेंचर्स के केस में भी कॉस्ट कंप्यूट करना आसान है, बिकॉज रेट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट इज ऑल्सो फिक्स्ड. बट व्हेन इट कम्स टू इक्विटी शेयर्स, अब रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड फिक्स नहीं है. अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड होगा. अगर प्रॉफिट है तब भी ये जरूरी नहीं है कि डिविडेंड होगा ही. कितना डिविडेंड होगा? ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. तो अब यहां पे जब हम इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट कंप्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है.
एंड एक्चुअली वी आर हैविंग नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद में पढ़ेंगे तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही पढ़ेंगे, वहां पे तो डिटेल में हमारे को पढ़ना ही है, बट स्टिल आई कम टू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी। अब यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इसकी डेफिनेशन क्या है? हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसकी दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ dividend payable to maintain the prices at existing level. It is minimum amount of dividend payable to maintain the prices at existing level, or the second definition is cost of equity is equal to expectations of shareholders. Cost of equity is equal to expectations of shareholders. अब थोड़ा सा we come to the concept of stock market. हमने स्टॉक मार्केट के बारे में पहले भी डिस्कस करा था। Look, जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो मार्केट है। वन इज द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? आईपीओ रूट है। आईपीओ क्या हो गया? इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हेन द कंपनी इज इशूइंग द शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू द शेयर होल्डर्स, दैट इज कॉल्ड एज द आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक, अब उसमें क्या होगा? जो शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड होंगे, जो पर्सन्स इंटरेस्टेड होंगे कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने में, वो कंपनी को एप्लीकेशन करेंगे, कंपनी को पैसा पे करेंगे, एंड कंपनी विल बी अलॉटिंग द शेयर्स टू देम। सो दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड दिस इनिशियल पब्लिक ऑफर ये तो एक बार हो रहा है, जब भी कंपनी शेयर इश्यू कर रही होगी टू द शेयर होल्डर्स, दैट विल बी देयर। अब इसके बाद में देयर इज अ सेकेंडरी मार्केट। जो हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ इज द प्राइमरी मार्केट एंड स्टॉक मार्केट इज द सेकेंडरी मार्केट। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि कंपनी ने एक बार मेरे को शेयर्स इश्यू कर दिए, शेयर्स इश्यू करने के बाद में अब कंपनी तो मेरे को पैसा वापस करेगी नहीं। एंड वी नो दैट द बिजनेस और द कंपनी इज गोइंग कंसर्न, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन एग्जिस्ट फॉर एनी टाइम। 300-400 साल से भी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है, लगभग 400 साल हो गए। It came to India, they started doing business in India during Jahangir's period. वहां से लेके आज भी कंपनी एग्जिस्ट करती है, भले ही वो शेयर होल्डर नहीं रहे हों। अभी आज की डेट में उसके जो शेयर होल्डर है, कोई इंडियन है जिसने वो कंपनी एक्वायर करी है, उसके पास में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। शेयर होल्डर इंडियन है बट कंपनी है। ठीक, क्या हो गया? क्या हुआ? बिजनेस और द कंपनी इज गोइंग कंसर्न, नॉट द शेयर होल्डर। अब यहां पे मैं पैसा लगा देता हूं और मेरे को ये नहीं मालूम कि मेरे को प्रिंसिपल मिलेगा, मेरे को ये नहीं मालूम कि मेरे को डिविडेंड मिलेगा, तो मैं क्या पैसा लगाऊंगा? आंसर इज नो। तो यहां पे क्या हो गया? ये तो सिचुएशन कैसी हो गई कि तुम्हारे को मैं एक ऐसे कमरे में लेके जा रहा हूं जहां पे निकलने का रास्ता ही नहीं है। अगर तुम्हारे को मालूम है निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो तुम क्या उस रूम में एंटर करोगे? नहीं। तो क्या लोग कंपनी में पैसा लगाएंगे? नहीं। तो मेरे को लोगों को एग्जिट रूट देना पड़ेगा ना। एंट्री तो हो गई किसके थ्रू? आईपीओ के थ्रू। एंट्री हो गई आईपीओ के थ्रू। अगर मैं लोगों को एग्जिट रूट नहीं दूंगा तो लोग एंटर ही नहीं करेंगे, किसी के ऊपर फोर्स थोड़ी ना शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। जो हमारा इक्विटी मार्केट है या स्टॉक मार्केट है, दैट गिव्स अस एग्जिट रूट। ये शेयर होल्डर्स को एग्जिट रूट दे रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो यहां पे अब इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट के थ्रू हमारे पास में क्या आ गया? एग्जिट रूट आ गया। एवरीबडी हैज गॉट दिस नाउ।
अब जब हम यहां पे बात कर रहे हैं इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट की, तो एग्जिट रूट में अब स्टॉक मार्केट एक्चुअल में काम करता कैसे? दो लोग हैं, एक शेयर बेच रहा और एक शेयर खरीद रहा है। अब यहां पे शेयर खरीदने वाला क्या सोच के शेयर खरीद रहा होगा? इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा। लोग, कोई भी है इन्वेस्टर मार्केट में क्यों जाएगा? प्रॉफिट के लिए जाएगा ना। लोग, नोबडी इज फोर्सिंग मी टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, नोबडी इज फोर्सिंग मी टू बी देयर इन द स्टॉक मार्केट। ना शेयर खरीदने के लिए फोर्स कर रहा और ना शेयर बेचने के लिए फोर्स कर रहा। So there is no force on anybody. Anybody who is entering into the stock market is going as per his will. किसी को फोर्स नहीं किया हुआ है। तो जो बायर है वो भी फायदे के लिए जा रहा है और जो सेलर है वो भी फायदे के लिए जा रहा। तो अगर मैं शेयर खरीद रहा हूं, तो मैं क्या सोच के शेयर खरीद रहा हूंगा? क्या सोच के शेयर खरीद रहा हूंगा? मेरे को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा ना, यही तो सोच के शेयर खरीदूंगा। कोई ये सोच के शेयर खरीदता है कि नुकसान हो जाएगा? नहीं, नुकसान हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हम क्या ये सोच के शेयर खरीदते हैं? नहीं। तो जो बायर ऑफ शेयर है वो क्या सोचता है? इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ने वाला है तो सेलर ने बेच क्यों दिया? अगर शेयर का प्राइस बढ़ना है तो सेलर बेच क्यों रहा है? वो इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसका ओपिनियन डिफरेंट है। वो ये सोचता है कि अब इस शेयर का प्राइस और बढ़ेगा नहीं, प्राइस कम होगा। एंड दिस डिफरेंस इन ओपिनियन क्रिएट्स स्टॉक मार्केट। अगर ये डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं है तो स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। स्टॉक मार्केट के एग्जिस्ट करने के लिए डिफरेंस इन ओपिनियन चाहिए ही। अगर सबको लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो सिर्फ वहां बायर्स ही बायर्स होंगे, सेलर होंगे ही नहीं ना। और अगर कोई बेचने वाला नहीं है तो तुम खरीदोगे कैसे? कोई भी चीज खरीदनी है तो कोई तो बेचने वाला चाहिए ना। मैं बोलूं मैंने शेयर खरीद लिया, बट किससे खरीदे? कोई तो चाहिए था ना बेचने वाला। अगर कोई सेलर ही नहीं है तो बायर कहां से होगा? सिर्फ बायर हो जाने से क्या मार्केट क्रिएट हो जाएगा? नहीं। इज दिस क्लियर? ठीक। अब यहां पे लोग, वैसे तो बिकने को तो कुछ भी बिक सकता। लोगों ने चांद पे मंगल पे प्लॉटिंग करके प्लॉट बेच डाले हैं, लोगों ने खरीदे भी हैं। मार्स पे बेच डाले कि हो सकता वहां कभी पॉसिबल लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, पॉसिबल है। मून पे भी बेच डाले, प्लॉटिंग हो गई है। लोग, बिकने को तो कुछ भी बिक सकता, खरीदने वाले कुछ भी खरीद लेते हैं, कुछ भी है, ट्रांजैक्शन तो कुछ भी पॉसिबल है। बट अदरवाइज वहां पे भी देखोगे तो इन सब ट्रांजैक्शन में एक बायर है और एक सेलर है। मेरे को चांद पे जमीन खरीदनी है पर कोई बेच रहा है क्या? जब तक कोई बेचेगा नहीं तब तक मैं खरीदूंगा कैसे? कोई तो चाहिए बेचने वाला। अब बेचने वाले तो ताजमहल भी बेच गए थे नहीं, बट वहां पे भी खरीदने वाला था ना, तभी तो बेचा। तो क्या होना है? किसी भी ट्रांजैक्शन के होने के लिए दो लोग चाहिए, एक बायर चाहिए और एक सेलर चाहिए। सिर्फ बायर होंगे तब भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, सिर्फ सेलर होंगे तब भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। नीड बोथ। अब यहां पे जब तक ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्रिवेल नहीं करेगा तब तक स्टॉक मार्केट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? बायर थिंक्स दैट शेयर इज चीप, सेलर थिंक्स दैट इट इज कॉस्टली। जो खरीदने वाला है वो क्या सोच के खरीद रहा है? कि वो सस्ता खरीद रहा है, और बेचने वाला क्या सोच के बेच रहा है? कि वो महंगा बेच रहा है। ऑब्वियसली दो में से किसी एक का ओपिनियन सही होगा, एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा। मींस उसी ट्रांजैक्शन में अगर प्राइस बढ़ा तो खरीदने वाले का फायदा और बेचने वाला सोचेगा कि मैंने जल्दी क्यों बेच दिया। अगर प्राइस गिर गया तो सेलर है वो खुश होगा, अच्छा हुआ मैंने बेच दिया। बट खरीदने वाला सोचेगा कि मैंने क्यों खरीद लिया शेयर। तो क्या हुआ? फायदा नुकसान तो किसी एक का ही होगा। बट ऑब्वियसली यहां पे अब क्या चाहिए? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चाहिए। जब तक ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है तब तक मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
Is this clear? Everybody has got this now. अब यहां क्या होता है? When it comes to the stock market is having one inherent tendency to predict the future. स्टॉक मार्केट की एक इनहेरेंट टेंडेंसी है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. तो जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम आज ही प्राइस देने को तैयार रहते हैं. मोदी के इलेक्शन जीतने के पहले स्टॉक मार्केट सब्सटेंशियली राइज कर गया था कि मोदी आएगा और अच्छे दिन आएंगे. मोदी आ गया, अच्छे दिन का हम भी इंतजार कर रहे हैं, ठीक, शायद आएंगे. ठीक, अब वो हर बार लाल किले से बोलता है कि अच्छे दिन आएंगे, वो उसके तो आ गए. मैं शायद अपने ही बारे में कह रहा था कि अच्छे दिन आएंगे, पूरी दुनिया घूम ली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. जो गल्फ कंट्री बचे थे उधर भी निकल गया अभी. देन अब अब क्या हुआ इस सिचुएशन में? अब अगर हम बात करें तो इलेक्शन के बहुत पहले से स्टॉक मार्केट राइज करना शुरू हो गया था. मई में इलेक्शन होने थे, जनवरी फरवरी से स्टॉक मार्केट राइज करना शुरू हो गया इन होप दैट मोदी विल बी विनिंग द इलेक्शन. क्या हुआ था? वहां पे ओपिनियन पोल आने शुरू हो गए विच वर गिविंग द लीड टू बीजेपी. तो शुरुआत के जो ओपिनियन पोल्स थे वो अराउंड 160-170 सीट्स दे रहे थे. धीरे धीरे करके जैसे जैसे इलेक्शन पास आते गए, इलेक्शन का मोमेंटम बनता गया, वैसे वैसे ओपिनियन पोल्स ने सीट बढ़ानी शुरू कर दी. एंड फाइनली अल्टीमेटली दे वॉन मोर सीट देन व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग. इट वाज अ गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑल्सो. इट वाज गुड स्ट्रैटेजी. ही मैनेज्ड द इलेक्शन इन बेटर मैनर देन व्हाट द कांग्रेस डिड. बट अब यहां पे अगर कांग्रेस जीत जाती थी तो शायद तो भी लोग मोदी के आने से शायद बहुत अच्छा नहीं हुआ हो, बट अगर कांग्रेस आती थी तो शायद तो भी स्टॉक मार्केट तो बेचारा बिल्कुल ही क्रैश कर जाता, दोबारा उठने की स्थिति में ही नहीं रहता था. बिकॉज द सेंटिमेंट्स वर प्योरली मीन्स सब्सटेंशियली अगेंस्ट द कांग्रेस विन. एंड when if that would have happened, अभी भी ओपिनियन भले ही मोदी के फेवर में बहुत नहीं रहा हो, बट कांग्रेस के फेवर में नहीं गया. अभी भी लोगों के पास में ये चॉइस नहीं है कि मोदी को वोट नहीं किया तो किसको वोट करेंगे. कोई ऑल्टरनेट नहीं है. बीच में केजरीवाल था, बट वो नौटंकी इतनी करता है कि अब लोग उससे भी परेशान हो गए. तो अब ऑल्टरनेट कुछ है नहीं. दिल्ली में था, ठीक है, वो दिल्ली में जीत गया, बट उसके बाद में कुछ कर नहीं रहा है. एंड उसके ड्रामा ज्यादा चलता है. एक्चुअली ही इज नॉट हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उसको मालूम ही नहीं है कि काम एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन चलता कैसे. भले ही उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करा, बट उधर भी काम कर कहाँ पाया था. जॉब छोड़ के चला गया. जॉब छोड़ने की वजह तो होगी ना, नहीं हो रहा होगा ना उससे मैनेज. तो कैसा होता है ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट में काम करना, एक्चुअल में काम करने वाले तो सरवाइव करते ही नहीं, जो काम नहीं करते हैं वही सरवाइव करते हैं. तो अब हो सकता थोड़ा बहुत करता रहा हो उधर काम. एंड मे बी डिफरेंट रीजंस फॉर दिस. अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक मार्केट की एक इनहेरेंट टेंडेंसी है दैट इट ट्राइज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम प्राइस आज ही पे कर रहे हैं. मोदी के इलेक्शन जीतने के पहले मार्केट 500 पॉइंट बढ़ चुका था. निफ्टी, नेशनल स्टॉक इंडेक्स, स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स हैज गॉन अप बाय 500 पॉइंट. 7000 के आसपास वो चल रहा था निफ्टी, वो 7500 इलेक्शन के पहले आ गया. इलेक्शन जीतने के बाद में जीतते ही 1000 पॉइंट और बढ़ गया. 7500 से मार्केट बढ़ के 8500 चला गया. तो क्या हुआ, विद इन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, मार्केट जो इंडेक्स था 1500 पॉइंट से बढ़ गया. कौन सा? निफ्टी 1500 पॉइंट से बढ़ गया और बाद में क्रॉस करके वो 9000 भी क्रॉस कर गया था. अब 7000 से 9000 कितना परसेंट चेंज हो गया? लगभग 20% से ज्यादा का चेंज आ गया, फ्लक्चुएशन हो गया एक ही साल के अंदर, 1 साल से कम में.
1 साल तो अभी कंप्लीट हुआ है, उसके बाद तो मार्केट वापस गिरने लगा था जब लोगों ने देखा कि अच्छे दिन सिर्फ मोदी के आए हैं, तो वो डिप्रेस होकर उन्होंने शेयर बेचने शुरू कर दिए कि वो बाहर ही घूमता रहता है, वापस इधर आ ही नहीं रहा है। एंड दीज थिंग्स आर देयर कि वहां पे वो ठीक है, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है, एक्चुअल में सारा काम वो अकेला थोड़ी ना करेगा। यू नीड टू हैव प्रॉपर पर्सन टू डू दोज थिंग्स। उसके पास में टीम बहुत अच्छी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी होता और उसके पास में टीम कांग्रेस वाली होती, या फिर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर होता, that would have been the best thing. The prime minister, actually he was not taking any decision, but as a finance minister, Manmohan Singh was the best finance minister that India has ever seen. जो हम आज की डेट में प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं, वो प्रॉस्पेरिटी मनमोहन सिंह जब 91 to 96 में फाइनेंस मिनिस्टर था, उस टाइम पे जो उसने काम किया उसकी वजह से। Having great respect for him as a finance minister, but not as a prime minister, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर था ही नहीं ना। He was working as a servant to somebody else. तो वहां पे, and those were not very intelligent people. तो ऑब्वियसली कैसा था, रिफ्लेक्शन तो आता ही है ना। जिनके हाथ में रियल पावर थी वो कैसे चलाना चाह रहे थे कंट्री को, वैसा चला। एंड if you get the power without any obligation, this is actually the worst thing. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, they got the power without any responsibility, and this is the worst thing. And इसी की वजह से वो हारे भी। If you want power, be there, take responsibility and execute the power. बट मैं बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगर पावर एग्जीक्यूट करने लगूंगा तो उसमें करप्शन पड़ता है, एंड दैट हैपन। नाउ अब यहां पे हम क्या बात कर रहे थे कि मार्केट फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता। क्या हुआ, मोदी के जीतने से लोगों को लगता था कि इकोनॉमी इंप्रूव कर जाएगी, सो दे पेड द प्राइस बिफोर ही वॉन। After he won, they paid even more price कि नहीं, अब तो मोदी आएगी, अब तो चीजें इंप्रूव हो ही जाएंगी, अच्छे दिन आ ही जाएंगे। नहीं आए, उतने अच्छे दिन नहीं आए जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज देयर आर प्रॉब्लम्स। रनिंग अ स्टेट इज वन थिंग, रनिंग अ कंट्री लाइक इंडिया इज डिफरेंट थिंग, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कंट्रीज। बहुत सारे कंट्रीज हैं, और उन कंट्रीज में भी और छोटे छोटे भी और कंट्रीज हैं। एक स्टेट के अंदर में भी सब स्टेट बन जाते हैं। मीन्स अगर महाराष्ट्र लिया तो उसमें विदर्भ अलग हो गया, मराठवाड़ा अलग हो गया, कोंकण अलग हो गया, एंड देन यू आर हैविंग डिफरेंट, मीन्स देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया दैट इट इज एग्जिस्टिंग एज अ सिंगल कंट्री इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट. Actually, at the time of independence, nobody believed that India can survive as one country. But it survived and is doing well. Overall, देखो, then it is a satisfactory performance as a country. Because we are together, because जिस moment पे split हो गए, तो फिर वहां पे वो economic strength बचेगी ही नहीं. Today we are number 3 economy of the world. But अगर individual state देखोगे तो किधर नहीं. कोई भी जो डेवलप्ड स्टेट भी है वो भी कैसा होता है, वो आपस में ही लड़ते रह जाते थे. सो व्हाट इज देयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, तो कैसा हो जाता है कि यहाँ पे जब इंडिया जैसे कंट्री को रन करना है तो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है. इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क. यू कैन इमेजिन कि किस किस तरीके के एरियाज हैं. कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे लोग दिन का 20 रुपए नहीं कमा पाते, एंड एक बार में पूरी मैच स्टिक नहीं खरीद पाता है. कुछ ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जहां पे मैच बॉक्स नहीं सेल होता है, मैच स्टिक सेल होती है. एक बार वो मैच बॉक्स खरीदता है, उसके बाद में 5-10 मैच स्टिक खरीद के लेके आता, और दे कांट अफोर्ड इट. दिस इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. हम एक पानी की बोतल 20 रुपए की खरीद लेते हैं,
तो दिन भर में, पूरे दिन में वो 20 रुपए नहीं कमा पाता. What is the difference? A huge difference. One side, Mukesh Ambani lives in a house of 5,000 crore rupees. Other side, the person are living on footpath. 26 स्टोरी की बिल्डिंग में रह रहा है. दुनिया के सबसे महंगे घर में रह रहा है. And other way round is also there. So there is so much diversity. So that actual में maybe जब इलेक्शन था तब मोदी को भी एग्जैक्टली पूरा आइडिया नहीं था कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है. उसको जो लोग बताते थे उस हिसाब से वो कर रहा था. उसको लग रहा था जैसे उसने गुजरात में किया काम वैसे ही बाकी पूरे कंट्री में हो जाएगा. बट इफ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट प्लेस. बहुत सारे स्टेट में वो अपने आप को इंडियन समझते ही नहीं है. दे कम टू इंडिया फ्रॉम देयर प्लेस. हमारा कुछ उनके साथ में लिंक ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं. They are doing their own things and we are having other places also. So there are complications. तो वहां पे जो एक काम करने के लिए एक्चुअल में उस चीजों के लिए 2-1 साल तो शायद उसको समझने में लग जाए कि एग्जैक्टली करना कैसे है चीजें. And whatever he is trying to do at this moment, he is not able to manage or his team is not able to manage. Now, तब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट बढ़ा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से. अब ये एक्सपेक्टेशन किसी बेसिस पे होंगी. से फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन कंपनी विच इज हैविंग अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ₹100. कितना है शेयर का प्राइस? 100 रुपीज का शेयर है. एंड दिस शेयर प्राइस ऑफ ₹100 इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट द कंपनी विल बी गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 20 रुपीज. क्या है? मार्केट में अभी प्राइस ऑफ शेयर कितना चल रहा है? 100 रुपीज. एंड दिस 100 रुपीज शेयर प्राइस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट द कंपनी इज गोइंग टू गिव अ डिविडेंड ऑफ 20 रुपीज. बट वेदर द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव द डिविडेंड. कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन है नहीं. अब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है. सपोज कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है 15 रुपीज का. अगर कंपनी ने 15 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अच्छा ये बताओ, who is the final authority for the declaration of dividend? Board of directors or the shareholders? Shareholders. Technically shareholders. Look, every company has to conduct one meeting every year. एक मीटिंग कंडक्ट करनी है कंपनी को, that is called as annual general meeting. And in any annual general meeting there are 4 ordinary businesses to be conducted. ये 4 ordinary businesses हैं क्या? One is adoption of account, then declaration of dividend, appointment, reappointment of auditors, appointment and reappointment of directors. These are the 4 ordinary businesses to be conducted in any of annual general meeting. किसी भी AGM में ये 4 ordinary businesses conduct होने. अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस की, वन ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेसेस टू बी कंडक्टेड इज द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. एक्चुअल में डायरेक्टर्स प्रपोज डिविडेंड एंड इट बिकम्स फाइनल ओनली इन द AGM. डायरेक्टर्स क्या करते हैं? डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं. दैट इज वाई जब हम बैलेंस शीट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रपोज डिविडेंड लिखते हैं. प्रपोज डिविडेंड कैसे हुआ? डायरेक्टर्स ने वो डिविडेंड प्रपोज करा, बट वो फाइनल कब होगा? इन AGM. एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? डायरेक्टर्स की है. तो AGM होने के पहले बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी होगा. वो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी होने के बाद में AGM में वो रखेंगे फॉर अप्रूवल. ये हमारी पिछले साल की कंपनी की परफॉर्मेंस है. ठीक, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए किसने? डायरेक्टर्स ने. और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड भी है. जो डिविडेंड है क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जब डायरेक्टर्स मीटिंग होती है तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में
जो डायरेक्टर्स हैं वो एक डिविडेंड अनाउंस करते हैं और इस डिविडेंड का रेजोल्यूशन पास होना है कहां पे? एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। ठीक, तो टेक्निकली द शेयर होल्डर्स आर द फाइनल अथॉरिटी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, बट प्रैक्टिकली देयर इज वन डिफिकल्टी हियर कि वो डिविडेंड बढ़ा नहीं सकते। जो डायरेक्टर्स ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, अगर वो चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, बट इसको बढ़ा नहीं सकते। तो भले ही मैं फाइनल अथॉरिटी बन गया हूं फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, बट मैं इस डिविडेंड को बढ़ा नहीं सकता। इज दिस पॉइंट क्लियर? इन दिस सिचुएशन एज ए शेयर होल्डर अब मेरे पास में राइट है क्या? कंपनी ने 15 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। मैं सोच रहा था कंपनी कितना डिविडेंड देगी, 20 रुपीज का डिविडेंड देगी। तो 20 रुपीज का डिविडेंड देगी तो चाय के साथ में वड़ा पाव भी खा लेंगे। अब 15 रुपए का डिविडेंड दिया तो अब चाय का ही अरेंजमेंट हुआ, वड़ा पाव तो आ नहीं रहा, तो दिक्कत हो गई। अब क्या शेयर होल्डर खुश है? नहीं, वो तो उम्मीद कर रहा था चाय के साथ में उसको वड़ा पाव मिलने वाला, 20 रुपए का डिविडेंड आएगा, अब उसको चाय ही मिलने वाली है, तो क्यों नाराज होगा? होगा ही नाराज। अब वो क्या कर सकता? डिविडेंड बढ़ा सकता? नहीं बढ़ा सकता। बट अगर वो चाहे तो डायरेक्टर्स को हटा सकता। डिविडेंड नहीं बढ़ा सकते, बट डायरेक्टर को तो हटा सकता। जो अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स होता है दैट इज बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो अगर ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से अगर वो चाहे तो डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता, बट दिस रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स विल ऑल्सो बी टेकिंग प्लेस ओनली आफ्टर द मीटिंग इज कंक्लूडेड। मतलब जब तक जनरल मीटिंग चल रही है उस बीच में से डायरेक्टर्स को नहीं हटाया जा सकता कि मेरे को इसकी शक्ल पसंद नहीं है, बस ये आज से दिखना है नीचे। कांट बी डन दिस वे। तो जब तक मीटिंग चल रही है तब तक वो डायरेक्टर रहेगा। रिजोल्यूशन पास होगा, रिजोल्यूशन पास होने का जो इफेक्ट आएगा वो मीटिंग खत्म होने के बाद आएगा। नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अगर सोचो अगर ऐसा हो, नहीं पसंद आए डायरेक्टर की शक्ल, अब क्या करा? उसको हटा दिया। बेचारा जनरल मीटिंग में उधर आके चेयर पे बैठा, नीचे से चेयर निकाल ली, बोला भाग जाओ, नहीं पसंद आ रही मेरे को शक्ल तुम्हारी। तो वहां तो दिक्कत हो जाएगी, सारे डायरेक्टर्स को भगा दिया, अब क्या होगा? तो अब वहां पे जब तक मीटिंग चल रही है तब तक तो डायरेक्टर्स को हटाया नहीं जा सकता। अब डायरेक्टर्स को रिमूव करने का रेजोल्यूशन पास भी कर दिया, हमने बोला कि नहीं ये डायरेक्टर चाहिए ही नहीं। 15 रुपए का डिविडेंड दिया, ऐसा चलता है क्या? 20 का चाहिए था डिविडेंड। हटाने के अगर रेजोल्यूशन पास भी कर देंगे तो इस बार की जनरल मीटिंग में तो कुछ नहीं हो सकता। अभी तो वो डायरेक्टर रहने ही वाले हैं और उन्होंने बोला 15 का ही डिविडेंड देंगे, 1 रुपए ज्यादा नहीं। कुछ नहीं कर सकते, बट एक काम तो कर सकते हो, नहीं पसंद आया शेयर तो बेच सकते हो, डिविडेंड नहीं बढ़ा सकता, डायरेक्टर को हटा भी दिया तो अभी वो हटेगा नहीं। तो क्या हुआ? एक काम तो किया जा सकता है कि मैं अपने शेयर बेच देता हूं। अगर इन्वेस्टर, ज्यादातर इन्वेस्टर लोग, अकेला मैं ही सोच रहा हूं तो उससे कुछ नहीं होगा, सब मिलके सोचेंगे तो होगा। दिस व्हाट वी कॉल एज एक्सपेक्टेशन थ्योरी। ठीक, दिस वी कॉल एज एक्सपेक्टेशन थ्योरी। जो सब मिलके सोचेंगे वैसा हो जाएगा। एंड हियर इफ एवरीबडी वाज थिंकिंग इन दिस वे तो क्या हो जाएगा? अब इन्वेस्टर शेयर बेचना शुरू कर देंगे तो अब सेलर बढ़ गए और बायर कम हो गए, खरीदने वाले कम हो गए और बेचने वाले ज्यादा हो गए। तो क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ शेयर विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड टेक्निकली दिस प्राइस ऑफ शेयर विल कम डाउन टू 75 रुपीज। कितने पे आ जाएगा ये शेयर का प्राइस? 75 रुपीज पे ये शेयर का प्राइस आ जाएगा। कैसे? थियोरेटिकली बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली होगा या नहीं होगा ये हम गारंटी के साथ में नहीं बोल सकते। अगर मैं 100 रुपीज पे 20 रुपी का डिविडेंड लूं देन दिस इज 20% रिटर्न। अगर मैं 15 रुपीज का डिविडेंड 75 रुपीज पे लूं तो ये भी 20% रिटर्न है।
बात तो एक ही हो गई ना। मेरे को रुपीज में थोड़ी ना देखना, मेरे को तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना ना, कितना पैसा लगा के कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर मैं 100 रुपीज का शेयर पे 20 रुपीज का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा था, देन इट वाज अ 20% रिटर्न। तो अगर शेयर का प्राइस गिर के 75 आ जाएगा, तो जो 75 पे खरीदेगा उसको तो 20% रिटर्न मिल गया ना। इज इट क्लियर? नाउ हियर इट मैचेस द एक्सपेक्टेशन अगेन। तो यहां सोच के देखो क्या हो रहा। अगर कंपनी डिविडेंड देती थी कितना, 20 रुपीज, तो क्या शेयर होल्डर नाराज होते थे? नहीं। क्या वो शेयर्स बेचते थे? नहीं। तो प्राइस ऑफ शेयर कितना रहना था? इक्वल टू 100 रुपीज। ठीक। बट अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे विच इज लेस देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, तब उस केस में क्या होगा? द प्राइस ऑफ शेयर इज गोइंग टू डिक्लाइन। एंड इन दिस सिचुएशन, अब यहां पे ये बताओ कि अगर कंपनी को अपने शेयर का प्राइस मेंटेन करना है तो कितना डिविडेंड देना चाहिए था कंपनी को? 20 रुपीज का डिविडेंड देना चाहिए था ना। अभी हमने तो कंपनी को कितना डिविडेंड देना चाहिए? 20 रुपीज। सो व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी वी हैव रिटन? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, दिस इज द मिनिमम अमाउंट of dividend payable to maintain the prices at existing level. क्या है डेफिनेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? लोग कहीं लिखा नहीं है कि 20 रुपए डिविडेंड देना चाहिए, बट जनरल एक्सपेक्टेशन इन द मार्केट वाज दैट द कंपनी मे बी गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 20 रुपीज। तो अगर कंपनी अपने शेयर का प्राइस मेंटेन करना चाहती है तो कंपनी को कितना डिविडेंड देना चाहिए था? 20 रुपीज। तो कंपनी के लिए इन शेयर्स की कॉस्ट कितनी हो गई? 20 रुपीज, और यू कैन से 20% is the cost. Is this clear? अगर कंपनी 20 रुपीज का डिविडेंड नहीं देगी, उससे अगर कम डिविडेंड दे देगी, then the price of the share is going to decline. And so in that situation, कंपनी को कितना डिविडेंड देना चाहिए? तो कॉस्ट क्या हो गई? This is minimum amount of dividend payable to maintain the prices at existing level. And the second definition is दिस इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर। एक्चुअल में दोनों एक ही बात कर रहे हैं। कैसे? कंपनी को मिनिमम कितना डिविडेंड देना चाहिए टू मेंटेन द प्राइसेस एट एग्जिस्टिंग लेवल? दिस इज इक्वल टू 20 रुपीज। एंड व्हाट इज 20 रुपीज? 20 रुपीज इज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स। इज दिस क्लियर? अगर कंपनी उतना डिविडेंड देती है जितना शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो प्राइसेस मेंटेन रहेंगे। अगर नहीं दे रही है उतना डिविडेंड, देन द प्राइसेस विल नॉट बी मेंटेन्ड। इज दिस क्लियर? गॉट दिस? नाउ अब यहां पे क्या करना होगा हमारे को? व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फाइनली हमने क्या डिसाइड कर लिया? क्या हमारे पास में इसकी डेफिनेशन आ गई? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक। नाउ इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी आर हैविंग टू बेसिक वेरिएबल्स। हमारे पास में दो बेसिक वेरिएबल्स हैं, वन इज रिस्क एंड अनदर इज रिटर्न। हमारे पास में दो बेसिक वेरिएबल्स हैं, one is risk and another is return. If you are taking less risk, then you should be satisfied with lower return. If you are taking more risk, then you should demand higher returns. And once you are depositing your money in the bank or public sector bank, are you taking more risk or less risk? You are taking less risk, and we are satisfied with the lower returns. Saving account पे 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, बट लोग क्या सारा पैसा निकाल ही लेते हैं सेविंग्स अकाउंट से? नहीं। एफडी पे 8%, 8.5% मिल रहा है। पीपल आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, तभी तो पैसा रखा हुआ है। क्यों रख रहे हैं बैंक में पैसा? क्योंकि सेफ है। चलो 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, बट गारंटी तो है 8% मिलेगा। स्टॉक मार्केट में मैं बोल रहा हूं 20% रिटर्न मिल गया एक साल में, बट वो तो जिसने 2014 में इन्वेस्ट किया उसका, जिसने 2015 में इन्वेस्ट किया वहां तो 9,000 से 8,500 के आसपास मार्केट आ गया, 500 पॉइंट डिक्लाइन करा, और भी डिक्लाइन कर गया था। तो क्या उनको 20% रिटर्न मिल रहा? नहीं मिल रहा। स्टॉक मार्केट में रिटर्न मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता, बट
वहां पे अब कैसा होता है, when it comes to the basic two variables, क्या थे हमारे पास दो वेरिएबल्स, वन इज रिस्क एंड अनदर इज रिटर्न। जब हम रिस्क एंड रिटर्न की बात कर रहे हैं तो अब यहां क्या हो जाता है कि एज ए शेयर होल्डर अब इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, तुम कंपनी फॉर्म करने जा रहे हो, या फिर सपोज मैं कंपनी फॉर्म करता हूं, मैं तुम्हारे को बोलता हूं तुम पैसा लगाओ मेरी कंपनी में, तुमने बोला ठीक है पैसा लगा देंगे, बताओ पैसा वापस कब मिलेगा? बोलता हूं कभी नहीं, जब कंपनी बंद होगी तब देखेंगे, जब तक कंपनी चल रही है तब तक तो पैसा दूंगा नहीं। ठीक, तुमने बोला अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब कंपनी बंद होगी तो इंतजार कर लेंगे, ठीक है तब मिलेगा कोई बात नहीं, डिविडेंड तो दोगे? मैंने कहा मेरा मन होगा तो दूंगा। अब ये बताओ कि तुम जब पैसा लगा रहे हो मेरी कंपनी में, जब जो कंपनी मैंने फॉर्म करी, जब पैसा लगा दो तुम्हारी भी कंपनी बन जाएगी ना वो, पर अभी तो जब पैसा लगाने से पहले मेरी कंपनी है ना। ये बताओ तुम इस कंपनी में जब पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब इस कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, तुम कम रिस्क ले रहे हो कि ज्यादा रिस्क ले रहे हो? ज्यादा रिस्क। तुम्हारे को मालूम ही नहीं कि प्रिंसिपल वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी मालूम नहीं कि डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो रिस्क तो तुम्ही ने ली ना। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की कुछ रिस्क नहीं है, बट शेयर होल्डर की रिस्क तो ज्यादा है। ये सोच के देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर जहांगीर ने खरीद लिए होते, शेयर खरीद लिए, अब कंपनी से वो पैसे वापस मांग रहा, अच्छा पैसे दे दो, कह रहे नहीं पैसे नहीं देंगे हम वापस। बोल रहा अच्छा डिविडेंड तो दे दो, इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, हम मना कर दिया नहीं डिविडेंड भी नहीं देंगे। बेचारा कितने साल इंतजार करता कंपनी के बंद होने का, 400 साल तो हो गए अभी भी कंपनी बंद नहीं हुई, बेचारा इंतजार में मर भी नहीं पाता। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ कि कौन रिस्क ले रहा है? शेयर होल्डर रिस्क ले रहा है ना। और कितनी रिस्क ले रहे हो? बहुत रिस्क ले रहे हो ना। लोन में तो प्रिंसिपल वापस मिलेगा ना, प्रेफरेंस शेयर में भी मैक्सिमम 20 इयर्स का पीरियड है, 20 इयर्स में तो पैसा वापस मिलेगा ना। बट इक्विटी शेयर में तो कुछ गारंटी नहीं, प्रिंसिपल की गारंटी ना डिविडेंड की गारंटी। तो एज ए इक्विटी शेयर होल्डर आई एम टेकिंग हाईएस्ट रिस्क। एज ए इक्विटी शेयर होल्डर आई एम टेकिंग हाईएस्ट रिस्क। अगर मैं रिस्क हाईएस्ट ले रहा हूं तो मैं रिटर्न भी हाईएस्ट ही एक्सपेक्ट करूंगा ना। And what is the definition of the cost of equity? Cost of equity is equal to expectations of shareholders. Cost of equity is equal to expectations of shareholder. And as a shareholder, because I am taking more risk, so I will be expecting more returns. तो यहाँ पे cost of equity will be highest. Cost of equity will be highest. Cost of equity is going to be highest here. ठीक. Now, how the company is controlled? कंपनी चलती कैसे है? कंपनी चलती है थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो कोई भी कंपनी है उसको चलाने के लिए कौन चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे एंड दे विल बी रनिंग द कंपनी। अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो कंट्री कैसे चलता है? थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए ऐसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया। अब मिनिस्टर्स को एक्चुअल में कौन इलेक्ट करके भेज रहा है? हमें इलेक्ट करके भेज रहे हैं ना। वी आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंट्री, वी आर द शेयर होल्डर्स, वी आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, एक्चुअली वी आर द ओनर्स ऑफ द कंट्री। And we are appointing few people to run the country on our behalf. Is it clear? तो हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर सब लोग अपने हिसाब से चलाने लग जाएंगे कंट्री को तो किधर चलेगा नहीं ना। So you need to appoint somebody who can do that function, and that is how the things are running in the country. Same way, the company is owned by whom? बाय द शेयर होल्डर्स। अब मैंने कंपनी में पैसा लगा दिया, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे को बिजनेस करना भी आ गया।
लोग पैसा होना और बिजनेस चलाना आना दो अलग अलग चीजें है ना। अब यहाँ पे अगर सपोज मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो क्या मेरे को पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस का आइडिया है कि कैसा तेल ढूंढते हैं कहां से? अब ये काम तो मुकेश अंबानी को आता होगा ना, वो ढूंढता होगा कि किधर तेल है किधर तेल नहीं है। फिर जो क्रूड ऑयल है उनके रिफाइनिंग का बिजनेस है। अब क्रूड ऑयल में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, क्रूड ऑयल में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको क्या करा जाता है, रिफाइनिंग करी जाती है। रिफाइन करके उसी में से क्रूड ऑयल में से ही पेट्रोल निकलता है, उसी में से डीजल निकलता है, उसी में से केरोसिन निकलता है, उसी में से नफ्ता निकलता है, उसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं। कोलतार जो निकलता है वो जो रोड पे पड़ता है तार, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द क्रूड ऑयल। और ये पेट्रोलियम जेली जो वेस्लीन लगाते हो कहां से निकलती है? उसी से निकलती है, इसीलिए पेट्रोलियम जेली कहलाती है। सब बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट। अब यहां पे क्या गया हमारे पास में, अब मेरे को आइडिया थोड़े ना कि कैसा वो बिजनेस चलता। मेरे पास में थोड़े रुपए थे, वो मैंने लगा दिया। तुम्हारे पास में भी रुपए तो तुमने भी लगा दिया, बट हमारे को तो बिजनेस चलाना आता ही नहीं। ठीक है, मेरे को क्लासेस के बारे में आइडिया हो सकता, बट पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस के बारे में तो आइडिया बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही मैं किसी और कंपनी के शेयर खरीद लेता हूं, किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर खरीद लिए, इसका मतलब थोड़े ना कि हवाई जहाज उड़ाना आ गया मेरे को। विजय माल्या का कौन सा आता था नाउ। अब यहां पे कैसा आ गया, दैट व्हेन इट कम्स टू रनिंग द बिजनेस, तो शेयर खरीदना एक बात हो गई, बिजनेस चलाना और बात हो गई। किसी कंट्री का सिटीजन होना एक बात हो गई, कंट्री को रन करना दूसरी बात हो गई। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पे हमने क्या करा, जो डायरेक्टर्स हैं वो ईयर टू ईयर के लिए अपॉइंट होता है, उनको एक्चुअल में वो बाय रोटेशन चलते रहता है, जैसे भी हो रहा है, 3 साल के लिए हो रहा है, 5 साल के लिए हो रहा है, जैसा भी रहेगा। तो एवरी जनरल मीटिंग में मीन्स जो भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर सपोज 3 साल के लिए अपॉइंट हो रहा है तो 3 साल के लिए अपॉइंट हो रहा है, वो 5 साल के लिए हो रहा है तो 5 साल के बाद, 5 साल के बाद में वो रिटायर होगा। 3 साल के लिए नॉर्मली 3 साल के लिए रहता है। तो हर जनरल मीटिंग में कुछ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन रिटायर होते रहते हैं, उनकी जगह नए डायरेक्टर्स या तो उन्हीं को रीअपॉइंट कर दिया जाता है या फिर कुछ नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होता है। ठीक, अब कंपनी चलती किसके बेसिस पे है? कंपनी चलती है थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंट्री कैसे चलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो अब मोदी चाहेगा वैसा होगा। इलेक्शन के पहले हमारा डिसीजन था, बट एक बार हमने उसको इलेक्ट करके उधर भेज दिया तो वो जैसा चलाएगा 5 साल वैसा चलेगा। ही इज हैविंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तो उसको अभी तो हटाया नहीं जा सकता। तो 5 साल अच्छा चलाए या खराब चलाए ये उसका काम। 5 साल बाद देखेंगे, अगर अच्छा नहीं चलाया तो उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करेंगे। बट 5 years इट इज हिज जॉब टू रन द कंट्री। सेम वे डायरेक्टर्स जो अपॉइंट हुए एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अपॉइंट हो गए, एंड जो कंपनी है, कंपनी विल बी रनिंग थ्रू डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के ही थ्रू यहां पे कंपनी रन होने वाली है। इज इट क्लियर? गॉट दिस? देन अब यहां क्या होता है, दैट जो डायरेक्टर्स को कंट्रोल कैसे आता है? मुकेश अंबानी इज कंट्रोलिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो मुकेश अंबानी के पास में रिलायंस के कितने % शेयर्स? 26%। कंट्रोल की डेफिनेशन कैसे आती है? कंट्रोल की डेफिनेशन के 2 पार्ट है। 1, you are owning or you are holding more than 50% of the total share capital of the company, or you are controlling the composition of the board of directors. तो आखिर में कंपनी चलती कैसे है? कंपनी चलती है थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इफ ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड विदाउट माय कंसेंट, देन आई एम कंट्रोलिंग द कंपनी। ठीक, अगर मैं डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता हूं, सारे के सारे डायरेक्टर्स मेरे ही कहने से अपॉइंट होंगे, देन आई एम कंट्रोलिंग द कंपनी। मेजॉरिटी और ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स इफ दे कैन बी अपॉइंटेड बाय मी, देन आई एम कंट्रोलिंग, भले मेरे पास 50% शेयर्स हो या नहीं। तो 26% पे मुकेश अंबानी
कैसे कंपनी कंट्रोल करता होगा? अदर शेयर्स आर विद द स्मॉल शेयर होल्डर्स, करोड़ों लाखों शेयर होल्डर्स, 50 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स है रिलायंस के। अब उन किसी के पास में 100 शेयर, किसी के पास में 1000 शेयर, किसी के पास 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, बट मुकेश अंबानी के पास में करोड़ों शेयर्स है। अब सोच के देखो, अब रिलायंस की एजीएम कंडक्ट होती है स्टेडियम में, इतने शेयर होल्डर हैं कि कोई हॉल में, किसी हॉल में एजीएम कंडक्ट नहीं करी जा सकती, तो स्टेडियम में कंडक्ट होती है एजीएम। तुम्हारे पास में 100 शेयर है, तुम्हारे को लगता है कि ये रेजोल्यूशन जो पास करने जा रही है कंपनी, ये गलत है रेजोल्यूशन, तुम बोलते हो कि नहीं मैं इसके अगेंस्ट में वोट कर रहा हूं, कोई सुनने वाला है तुम्हारी? नहीं सुनने वाला। ज्यादातर शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर जो एजीएम में जाते हैं, एक्चुअल में वो क्यों जाते हैं? वहां पे चाय नाश्ता मिलता, खाने को मिलता है, इसलिए जाते कि चलो जाएंगे, आजकल लंच का तो बच जाएगा। कई बार कंपनी गिफ्ट भी देती है, तो गिफ्ट विफ्ट और इन सब के चक्कर में जाता है। और कई बार कैसा होता है, कंट्रोवर्शियल रेजोल्यूशन पास होने होते हैं, जहां पे लगता है मैनेजमेंट को कि शायद तो भी कुछ लोग अपोज करें, तो वहां पे कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है वो खड़ा होता है, बोलता है कि बाहर नाश्ता लग गया, खाना लग गया, जिसको खाना वो जा सकता है, थोड़ी देर में हॉल खाली हो जाएगा, सब लोग बाहर उधर चाय नाश्ता करने निकल गए होंगे, और फिर उसके बाद में वो पीछे रेजोल्यूशन पास कर डालता है। लोग, मीटिंग के लिए कोरम होना चाहिए, कोरम होना चाहिए, इतने लोग मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए, बट कोरम मीटिंग स्टार्ट करने के लिए होना चाहिए। बिजनेस कंडक्ट करने के लिए कोरम होने की जरूरत नहीं होती। एक बार मीटिंग शुरू हो गई तो हो गई, फिर 2 आदमी बैठ के भी सारे रेजोल्यूशन पास कर सकते। बाकी सब क्या कर रहे हैं बाहर, वो चाय नाश्ता, इधर वो रेजोल्यूशन फटाफट कंपनी सेक्रेटरी पढ़ता जा रहा है, उधर वो बोल रहे हैं हाँ यस यस यस, हो गए सारे रेजोल्यूशन पास। ऐसे एक्चुअल में इंडिया में बिजनेस ऐसे ही चलता है। That's how the things are there. पहले पार्लियामेंट भी ऐसी ही चलती थी। थोड़ा बहुत वो अन्ना हजारे और केजरीवाल ने लोगों में अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट कर दी, तो अब उसकी वजह से थोड़े से शोर हल्ला ज्यादा होना शुरू हो गया। नहीं तो कौन देखता था पहले कि क्या हो रहा है लोकसभा, टीवी पे न्यूज बनती थी, पता नहीं वो कुछ भी करके निकल जाते थे, किसको मतलब होता था कि क्या करा क्या नहीं करा, ठीक। बट आज की डेट में लोगों में भी अवेयरनेस है, और एमपीज को भी मालूम है कि अपनी शक्ल दिखानी है, तो कुछ हल्ला करा तो टीवी पे शक्ल आती है, नहीं तो बेचारे इधर ही कोने में बैठे रहेंगे कहीं पे। नाउ अब यहां क्या हो गया, कंट्रोल 50% से कम शेयर्स पे भी हो सकता, बट अभी हम मान के चलते हैं कि 50% शेयर्स लगने हैं। नाउ अब यहां हाउ द पोजीशन इज, सपोज देयर इज वन कंपनी, एक कंपनी है जिसमें प्रमोटर्स, अदर्स, ठीक, एंड टोटल। एक कंपनी थी, उसके एट प्रेजेंट कितने 1 लाख शेयर्स थे। इसमें से प्रमोटर्स के पास में 60,000 शेयर्स थे, एंड अदर्स के पास में कितने थे, 40,000 शेयर्स थे। अब अगर इनके पास में 60,000 शेयर्स है तो एट प्रेजेंट कितना है, 60% है। आर दे कंट्रोलिंग द कंपनी? यस। यहां पर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टर्स वही अपॉइंट करेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होना है। मेरे पास 60% शेयर है तो मैं सारे के सारे डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं चाहूं तो। इज इट क्लियर? क्या मेरा कंट्रोल है यहां पे? आंसर इज यस, देयर इज एब्सोल्यूट कंट्रोल हियर ओवर द कंपनी। अब यहां पे कंपनी को पैसे की जरूरत थी। अब जब कंपनी को पैसे की जरूरत थी तो उनके पास में डिफरेंट रूट्स थे। एक था कि बोरो कर लो बैंक से, लोन ले लो, डिबेंचर्स इशू कर दो, वहां से ले लो पैसा, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, बट दे डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर्स। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे। अब जब इक्विटी शेयर्स इशू करे, कितने, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे। एज पर सेबी गाइडलाइंस
एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम अगर कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है तो उसमें से 20% तो प्रमोटर को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। सो 20,000 शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब करे, बाकी 80,000 शेयर्स आउटसाइडर्स ने सब्सक्राइब कर लिए। अब अगर मैं टोटल लूं तो टोटल की पोजीशन कैसे आ जाती है? टोटल में वी आर हैविंग हियर 2 लाख, यहां पे 1,20,000 एंड यहां पे 80,000। अब अगर हम यहां पे सोच के देखें तो पोजीशन हमारे पास क्या आ जाती है? जो ओरिजिनली जब कंपनी के 1 लाख शेयर्स थे तो प्रमोटर्स के पास में 60% शेयर्स थे एंड दे वर हैविंग द एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द कंपनी। एंड वंस दे आर रेजिंग द मनी थ्रू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तब यहां पे इनके पास कितने परसेंट शेयर्स हो गए? 40% शेयर्स हो गए। अदर्स के पास में 60% शेयर्स हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि कंट्रोल पूरा ही खत्म हो गया। अभी अदर्स में 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, उनके पास थोड़े थोड़े शेयर्स हो, अलग बात है। बट जो एब्सोल्यूट कंट्रोल था वो तो खत्म हो गया। पहले जब 60% शेयर्स थे तो मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि बाकी क्या बोलेंगे। मेरे पास 60% शेयर्स हैं, आई कैन अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर्स एंड द कंपनी विल बी रनिंग अकॉर्डिंग टू माई विशेस। क्योंकि अगर कोई डायरेक्टर ढंग से मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, आई कैन रिमूव दैट डायरेक्टर। तो ऑब्वियसली जिसको मैं निकाल सकता हूं वो मेरी ही सुनेगा ना। कंट्रोल आता कहां से है? अपॉइंट करने की अथॉरिटी से आता है, रिमूव करने की अथॉरिटी से भी आता है ना। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो यहां पे क्या हो गया? इन दिस सिचुएशन यहां पे कंट्रोल तो डाइल्यूट हो गया ना। So when it comes to equity share, there is dilution of control. जब कंपनी नए इक्विटी शेयर्स इशू कर देती है to the outsiders, then there is dilution of control. Dilution of control. Is it clear? Everybody got this? Now, अब इसके बाद में आ जाते हैं किस पे? प्रेफरेंस शेयर्स पे। When it comes to the preference shares, preference shareholders are having preferential right over the payment of dividend and repayment of principal. And apart from this, the rate of preference dividend is also fixed. The rate of preference dividend भी fixed है। And अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाह रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, देन ओनली द डिविडेंड कैन बी गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसीलिए तो जब हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस कर देते हैं क्या? हम प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड देन कम्स द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर हैविंग प्रेफरेंशियल राइट of payment of dividend as well as the repayment of principal. अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस करने के पहले किसका पैसा देना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा देना पड़ेगा। Is it clear? Everybody has got this. So in that case what happens? अब यहां पे and apart from this, आज की डेट में जो पोजीशन है, अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड क्या है वहां पे? 20 ईयर्स। मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड इज 20 ईयर्स। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, क्या प्रिंसिपल वापस करना है? आंसर इज यस। मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड कैन बी 20 ईयर्स, 10 ईयर्स भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। तो कैप कंपनीज एक्ट में लिखा है कि मैक्सिमम पीरियड कितना है? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से कम कुछ भी हो सकता, बट नॉर्मली 10 साल से कम के प्रेफरेंस शेयर्स कंपनीज इशू नहीं करती हैं, नॉर्मल कोर्स में ऐसा नहीं करती हैं। ठीक है, देन अब यहां पे क्या हो रहा है? व्हेन इट कम्स टू प्रेफरेंस शेयर्स हियर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में कंपनी को प्रिंसिपल वापस करना पड़ेगा। मैक्सिमम 20 साल मान के चलो, बट 20 साल में तो पैसा देना पड़ेगा ना।
एंड क्या डिविडेंड देने की ऑब्लिगेशन है? अगर प्रॉफिट है तो हाँ। इक्विटी शेयर्स में प्रॉफिट होने पे भी ऐसा जरूरी नहीं था कि डिविडेंड देना ही पड़ेगा, बट इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, इफ देयर आर प्रॉफिट देन दे विल हैव टू गिव प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो, बट अगर लॉस है तो प्रेफरेंस डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑल्सो डिविडेंड एंड डिविडेंड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर लॉस है तो लॉस के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। बट अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, देन अगर लॉस था तो उस साल का डिविडेंड हमने नहीं दिया, बट इट गेट्स एक्यूमुलेटेड, एंड जब प्रॉफिट होंगे तो उस साल का और जो पिछला एक्यूमुलेटेड है वो दोनों पे हो जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर हैविंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बीइंग इशूड। ज्यादातर केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर सब्सक्राइब करता, अगर कंपनीज इशू करती हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तो मार्केट में सब्सक्रिप्शन आता ही क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का ही है। अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करेगी तो उसकी मार्केटेबिलिटी होती नहीं, इन्वेस्टर उसको खरीदेंगे नहीं नॉर्मल कोर्स में। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता ही नहीं है, बट नॉर्मल कोर्स में कंपनीज को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू करने पड़ते हैं। तब यहां पे क्या हुआ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, प्रिंसिपल भी वापस करना, और अगर प्रॉफिट है तो फिक्स रेट पे डिविडेंड भी देना है, एंड दैट फिक्स रेट इज ऑलरेडी डिसाइडेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। अगर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो इसका मतलब 10% प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। फेस वैल्यू अगर 100 रुपीज है, उसका 10% कितना आ गया? 10 रुपीज। उतना तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तो यहां पे अगर सोच के देखो, कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। रिस्क इज हायर देन इक्विटी। सो इट इज, when it comes to the risk is higher than equity. ठीक। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, जब हम इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे तो इक्विटी शेयर होल्डर, तो यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या हो रहा था, इक्विटी शेयर होल्डर को ना तो प्रिंसिपल मिलने की कुछ गारंटी थी, ना डिविडेंड की गारंटी है। यहां पे तो प्रिंसिपल की भी गारंटी है, और डिविडेंड अगर प्रॉफिट होंगे तो फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलेगा, ये भी गारंटी है। तो अब अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपेयर करूं तो रिस्क ज्यादा कौन ले रहा है? हु इज टेकिंग मोर रिस्क? देयर इज इक्विटी शेयर होल्डर इज टेकिंग more risk and preference shareholder is taking less risk, and if I am taking less risk then I should be satisfied with lesser return. तो जो cost of preference shares होना चाहिए, that cost of preference shares should be lower than equity. Equity से कम होना चाहिए। Is this clear? So यहाँ पे when it comes to the preference shares, the cost is lower than equity. Cost is lower than equity. Everybody agreeing with this? Depending. क्योंकि इक्विटी की अगर हम इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी के केस में तो बिजनेस की रिस्क पे डिपेंड करेगा कि तुम बिजनेस क्या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट आएगी। हम हर कंपनी के बारे में बता नहीं सकते कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। जैसे अगर मैं कोई एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, जैसा रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में प्रॉफिट भी ज्यादा है बट रिस्क भी तो ज्यादा है। तो अगर मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया 100 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट था,
अगर उसमें 10 बुकिंग हुई है तब भी मेरे को बनाने तो 100 फ्लैट्स ही पड़ेंगे ना। 10 स्टोरी बिल्डिंग है तो 10th स्टोरी का जो फ्लैट है वो सेल हो गया तो उसके नीचे की 9 बनानी पड़ेंगी ना। ऐसा थोड़ी ना उसको बोलेंगे कि अच्छा अभी नीचे ले लो फ्लैट, बाद में लिफ्ट से इसे ऊपर भेज देंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो जो अगर जिसने 10th स्टोरी पे फ्लैट बुक करा तो उसको 10th स्टोरी पे ही देना पड़ेगा ना। अब यहां पे ये है कि प्रॉफिट कुछ का कुछ हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा है बट रिस्क भी ज्यादा है। आजकल सब बेचारे बिल्डर्स सब परेशान है, बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। प्राइवेट फाइनेंसर है, प्राइवेट फाइनेंसर आज की डेट में 2% 3% कुछ भी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि रिस्क ज्यादा है। ठीक, तो अभी बिजनेस पे डिपेंड करता है। जिस बिजनेस में तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस हिसाब से तुम रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। इक्विटी शेयर होल्डर के एंगल से सोचा। प्रेफरेंस शेयर्स में तो तुम्हारा ऑफर डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है ना कि तुम अगर 10% बोल रहे हो तो 10% ही हुआ ना, उससे ज्यादा कहां हुआ। तो कितना वेरिएशन हो सकता मैं नहीं बता सकता। इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट। किस कंपनी के इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हो और कितना रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो कम भी हो सकता है डिफरेंस, ज्यादा भी हो सकता है डिफरेंस, माइनर मेजर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं है इसका कि इतना डिफरेंस होना चाहिए। इज इट क्लियर? गॉट दिस देन? अब ये बताओ कि क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? क्या वो वोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर वो वोट ही नहीं कर सकते तो क्या वो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते? नहीं कर सकते। तो क्या उनके हाथ में कुछ कंट्रोल होता है? बट इन सम केसेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑल्सो गेट द वोटिंग राइट। कब उनके पास वोटिंग राइट आ जाता? इफ दे आर हैविंग द प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स फॉर मोर देन 3 years या उससे ज्यादा के लिए अगर प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर्स में हो गया देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो गेटिंग द वोटिंग राइट। तो नॉर्मल कोर्स में तो कोई डाइल्यूशन होता नहीं है, बट इन एक्सेप्शनल सिचुएशन दे मे गेट द वोटिंग राइट ऑल्सो। इज दिस क्लियर? तो यहां पे डाइल्यूशन इन exceptional situations. Dilution in exceptional situations. Look, there are two type of preference shares. One is cumulative and another is non-cumulative. अगर non-cumulative preference shares है तो जिस साल में लॉस हुआ उस साल में डिविडेंड नहीं आया तो खत्म हो गया वो साल। बट अगर cumulative preference shares थे, that dividend gets accumulated and इस साल लॉस था, इस साल का डिविडेंड नहीं पे हुआ, बट नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तो पिछले साल का जिसका डिविडेंड पे नहीं हुआ उसका भी पे होगा और अगले साल का भी पे होगा। दीज आर कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। वो कितने साल तक एक्यूमुलेट होता है वो ऑफर डॉक्यूमेंट में रहता है कि 2 साल एक्यूमुलेट हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, कितने साल का होगा। इज इट क्लियर नाउ? Regarding their dividends? नो, उनका तो एक ही इंटरेस्ट है, वह उनका डिविडेंड, उससे ज्यादा नहीं। सो यहाँ पे नॉर्मल कोर्स में उनके पास में अभी तो एक्चुअल में कंपनीज एक्ट 2013 की पोजीशन लोगे। जो कंपनीज एक्ट 1956 था वो क्या बोलता था कि कंट्रोल की जो डेफिनेशन थी 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर की बात की हुई थी। वो अब यहां पे क्या कर दिया है, 50% और मोर ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल कर दिया।
अब जब शेयर कैपिटल को डिफाइन करा है कंपनीज एक्ट में, अभी जो कंपनीज एक्ट 2013 में, हाउ दे हैव डिफाइंड, दिस इज द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स विद ऑर्डिनरी राइट्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दिस इज द टोटल शेयर कैपिटल. जो पुराना कंपनीज एक्ट था वो बोलता था दैट 50% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग पावर नहीं है, वोटिंग पावर नहीं है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक, तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट नहीं कर सकते. ठीक, जहां जहां पे भी कंपनी का नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट होना है वहां पे वो वोट नहीं कर सकते. कहां वोट कर सकता है, जहां पे उनका मैटर आता है. उनका मैटर कहां आया, उनका नॉर्मली डिविडेंड के अलावा और कोई उनका एरिया ऑफ कंसर्न होता नहीं. इज इट क्लियर नाउ? अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स में अभी के कंपनीज एक्ट में क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ये सिचुएशन. अभी इसमें बहुत सारे जो कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया है, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी पुअरली ड्राफ्टेड piece of legislation and it is containing lot of drafting errors, जिसकी वजह से बाद में बहुत सारी लिटिगेशंस बढ़नी है. अब यहां पे कैसी पोजीशन है, सपोज देयर इज वन कंपनी ए लिमिटेड के 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स थे. और पुराना कंपनीज एक्ट क्या बोलता था, 50% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. तो वोट कौन कर रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर ही प्रैक्टिकली वोट कर रहा है. तो 50% और मोर ऑफ वोटिंग पावर आ गया, तो वोटिंग पावर के अकॉर्डिंग फिर वो गया, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर आए ही नहीं. बट अगर अभी मैं सोच के देखूं, एक कंपनी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टोटल. ठीक, अब यहां पे सपोज इसमें दो कंपनी है, ये हम ए लिमिटेड के शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, एक है एक्स लिमिटेड, ये हम ए लिमिटेड की बात कर रहे हैं. ये किसकी बात हो रही है, ए लिमिटेड की. इसमें एंड दूसरा है वाई लिमिटेड. इसमें इसके प्रेफरेंस शेयर्स ये होल्ड कर रहे थे, से 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स या फिर 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स है इनके पास में, और इनके पास में 80,000 प्रेफरेंस शेयर्स है. ठीक, तो टोटल कितना हो गया, 1 लाख. अब यहां पे इसके पास में इक्विटी शेयर्स है से 70,000 और इसके पास में है 30,000. तो टोटल कितना आ गया, 1 लाख. ठीक, अब जब मैं टोटल लेता हूं तो यहां पे टोटल है कितना, 2 लाख, और इसका टोटल है कितना, 90,000. इसका टोटल है 1,10,000. कंट्रोल के दो हिस्से हैं, एक है मोर देन 50%, अभी का जो कंपनीज एक्ट बोलता है मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल, और यू आर कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट कर रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब अगर सोच के देखोगे तो एक्स लिमिटेड के पास में ए लिमिटेड के 70% शेयर्स है. सो ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय होम, बाय एक्स लिमिटेड. सो हु इज कंट्रोलिंग ए लिमिटेड, X Limited, because it is controlling the composition of board of directors. Then I take the second definition. Second definition says 50% or more of the total share capital. जब total share capital लिया तो इसके पास 55% और इसके पास में 45%. इसका लो 2 lakhs पे 1,10,000 कितना हो गया, 55%, और ये 90,000 कितना हो गया, 45%. ठीक, अब यहां पे ये बताओ कि इसमें ए लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी कौन है, एक्स लिमिटेड की वाई लिमिटेड. एक डेफिनेशन के हिसाब से एक्स लिमिटेड, दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से वाई लिमिटेड. जो होल्डिंग कंपनी दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पेरेंट कंपनी.
holding company is called as parent company and this will be called as subsidiary company. ठीक, तो अब यहां पे क्या हुआ कि चाइल्ड तो एक है बट पेरेंट दो हो गए. होना तो एक ही चाहिए था बट अब दो हो गए, तो ऑब्वियसली झगड़ा तो होगा ही. हु इज द रियल पेरेंट? ये कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा केस, जाने वाला. अभी तो कंपनीज एक्ट आया है, अभी तो लिटिगेशन शुरू होंगी. कॉम्प्लिकेशन है. जब तुम लॉ भी ढंग से पढ़ोगे ना समझ में आएगा कि वहां पे भी तो 14 साल लगाए उन्होंने कंपनीज एक्ट को बनाने में. 1999 में रीड्राफ्टिंग शुरू हुई थी कंपनीज एक्ट की. 2013 में उन्होंने कंपनीज एक्ट बना के दिया और वो भी इतना खराब बनाया. ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया. ऐसे और पता नहीं कितने इंस्टेंसेस है जहां पे उन्होंने ड्राफ्टिंग एरर करी हुई है. करेक्ट कॉम्प्लिकेशंस विद दिस कंपनीज एक्ट. ठीक, नाउ तो यहां पे क्या हुआ, जब हम बात कर रहे हैं तो कंट्रोल में तो अभी तो गड़बड़ है. यहाँ पे शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर से भी कंट्रोल आ जाएगा. टेक्निकली इसके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इससे भी कंट्रोल आ रहा है इसके पास, बट ये एक्चुअल में रियल सिचुएशन है नहीं. दिस इज द प्रॉब्लम विद द कंपनीज एक्ट. और या तो कंपनीज एक्ट अमेंड हो जाएगा, नहीं तो जजमेंट आ जाएंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, एंड व्हाट दे विल बी डूइंग, पुरानी ही सिचुएशन पे आ जाना है. क्योंकि आखिर में कंट्रोल तो उसके पास में, जिसके पास रियल कंट्रोल है उसी के कंट्रोल की बात होगी ना. ठीक, तुम फिक्शनल कंट्रोल की बात नहीं कर सकते ना. राइट, ठीक. में अब यहां जब हम बात करते हैं डिबेंचर्स की, अब आ जाते हैं डिबेंचर्स. डिबेंचर्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स. डिबेंचर्स एक्चुअल में जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं, डेट या डिबेंचर, डिबेंचर वर्ड आया कहां से? डेट से आया. ठीक, अब यहां जब डिबेंचर्स की बात हुई तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, क्या प्रिंसिपल वापस करना है? यस. क्या इंटरेस्ट देना है? यस. अगर लॉस होगा तब इंटरेस्ट देना है? यस. प्रॉफिट में भी देना है, लॉस में भी देना है. प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में सोच के देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड देना है? हाँ देना है, बट कब देना है? जब प्रॉफिट होगा तब. बट इंटरेस्ट देना है जब लॉस होगा तब भी. लोग, मैंने किसी से लोन लिया और लोन लेने के बाद में बोलूं कि नहीं यार अभी तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, एक काम करो इंटरेस्ट नहीं दे रहा मैं बैंक, ऐसा चलेगा क्या? तो सब देना ही बंद कर देंगे ना इंटरेस्ट. बैंक से लोन लिया कि अरे अभी तेरा ठीक नहीं चल रहा, एक काम करो बाद में लेना इंटरेस्ट. बैंक बंद हो जाएंगी, डूब जाएंगे बैंक्स. Is it going to happen? It will be in that way. Now, when it comes to the debentures, principal देना है. उसके अलावा जो debentures हैं, they are secured against the assets of the company. ये secured creditors हैं. It is secured against the assets of the company, and if the company defaults in payment of interest or repayment of principal, then debenture holders can sell off the assets of the company and can recover the money. प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं कर सकते. इक्विटी शेयर होल्डर्स की तो बात ही नहीं आती. उनको तो जो आखिर में बचेगा वही मिलेगा. जो उनको आखिर में बचा, इक्विटी शेयर होल्डर तो बिल्कुल लास्ट में, जो शुरू में आएगा और लास्ट में जाएगा. ठीक, डिवेंचर होल्डर लास्ट में आता है और सबसे जल्दी जाता है. कहलाता है लीफो सिस्टम, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक, बट फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला कोई सिस्टम नहीं है. इक्विटी शेयर होल्डर, उसने बेचारे ने कंपनी बनाई, कंपनी में पैसा लगाया, जब बटने की बात आई पैसे तो बिल्कुल लास्ट में उसको लाइन में बिल्कुल आखिर में खड़ा कर दिया कि जब सबको पैसा मिल जाएगा तब तुम्हारे को मिलेगा. बट उसके पास में राइट है, वो है कंट्रोलिंग राइट. कंपनी आखिर में चला वही रहे. तो जिनसे हमने एक्सटर्नल पैसा लिया है पहले उनका पैसा देंगे ना, फिर बाद में खुद के पैसे की बात करोगे ना. नहीं तो लोग क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे, पहले अपना पैसा निकाला, फिर बाद में क्रेडिटर देखते रहेंगे बेचारे खड़े हुए. नाउ अब यहां कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क सोचो.
रिस्क कम है कि ज्यादा है? रिस्क ज्यादा है। क्यों है रिस्क ज्यादा? प्रिंसिपल हैज टू बी पेड, इंटरेस्ट हैज टू बी पेड whether the company is having profit or loss. Apart from this, when the company is issuing the debentures, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है, they have to secure the debentures against their assets. So the debenture holders, अगर उनका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे नहीं होगा, then they are having the right to sell off the assets of the company and can recover the money. Is it clear? Then तब यहां पे बताओ रिस्क कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोएस्ट की हाईएस्ट? हाईएस्ट। रिस्क इज हाईएस्ट। रिस्क इज हाईएस्ट। देन इट कम्स टू द कॉस्ट। व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट, कॉस्ट के केस में अब क्या होगा? कॉस्ट, अब डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, उसकी पोजीशन सबसे कंफर्टेबल है। कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको उसका इंटरेस्ट तो मिलना ही है। कंपनी अगर पैसे इंटरेस्ट नहीं दे पाई या प्रिंसिपल नहीं दे पा रही है, तो वो कंपनी के एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है। सो ही इज हैविंग मोस्ट सिक्योर्ड पोजीशन, एंड इफ आई एम टेकिंग लेस रिस्क देन आई शुड बी सेटिस्फाइड विद लेसर रिटर्न। सो डिबेंचर्स की या डेट की कॉस्ट लोएस्ट होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने एक पॉइंट पहले डिस्कस करा था कि प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट करते हैं आफ्टर कंप्यूटिंग द टैक्स, बट इंटरेस्ट इज डिडक्टेड बिफोर कंप्यूटिंग द टैक्स। अगर मैं इंटरेस्ट टैक्स कंप्यूट करने के पहले डिडक्ट कर दूं तो मेरी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, उसकी वजह से मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? देन when it comes to the preference shares और इक्विटी, इक्विटी का डिविडेंड तो डिडक्ट करा ही नहीं जा सकता, कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। बट when it comes to the preference dividend, प्रेफरेंस डिविडेंड कहां डिडक्ट होता है? आफ्टर कंप्यूटिंग द टैक्स। तो टैक्स कंप्यूट करने के बाद में डिडक्ट कर रहे हो तो उसकी वजह से हमारा टैक्स बचेगा नहीं। ठीक, उल्टा आज की डेट में तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट में वी आर हैविंग one section 115O, which talks about dividend distribution tax. What this dividend distribution tax is, whenever the company is paying or declaring the dividend whichever is earlier, then they have to pay one tax which is called as dividend distribution tax. तो क्या हुआ? टैक्स बचा नहीं, उल्टा और ज्यादा टैक्स देना पड़ा। तो प्रेफरेंस शेयर्स के मुकाबले में तो कभी भी डिबेंचर सस्ते पड़ते हैं। इसलिए यू कैन ऑब्जर्व दैट रिसेंटली वेरी फ्यू केसेस कंपनीज आर इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स। कभी आईपीओ आता देखा तुमने? न्यूज़पेपर में देखा ऐड कि कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही थी? नहीं कर रही थी। देन अब इसके बाद में आता है कंट्रोल। और वो डिबेंचर होल्डर बेचारे वो मीटिंग में जा ही नहीं सकते, वोटिंग की तो बात ही अलग है। जहां पे जनरल मीटिंग चल रही होगी वहां पे उनको जाने की परमिशन ही नहीं है, अनलेस अदरवाइज कि उनको बुलाया गया हो सकता है कि बुला लें। अगर इक्विटी शेयर होल्डर चाहे तो बुला भी सकते हैं, बट उनका कोई राइट नहीं बनता। तो वहां पे क्या हुआ? अब 3 लोग हो गए, तीनों के पास में अलग अलग आईडी कार्ड है। एक के पास में इक्विटी शेयर होल्डर वाला आईडी कार्ड है, दूसरे के पास में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तीसरे के पास में डिबेंचर होल्डर वाला आईडी कार्ड है। तो इक्विटी शेयर होल्डर तो बड़े आराम से जा सकता है उस मीटिंग में, आईडी कार्ड दिखाएगा और चला जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी जा सकता है, बट उसको अलग बिठा देंगे जहां पे वो वोट नहीं कर सकता। डिबेंचर होल्डर को बेचारे को वहीं गेट पे ही रोक देंगे, बोलेंगे ये तुम्हारे जाने वाली जगह नहीं है, बच्चे नहीं जाते। तो वहां पे अब क्या हुआ कि वो बेचारा वहां पे जनरल मीटिंग में जा ही नहीं सकता, तो वोट क्या करेगा? बाहर से खड़ा खड़ा चिल्ला रहा है, हटा दो डायरेक्टर को, हटा दो, इंटरेस्ट नहीं दे रहा मेरा ये। अगर डिबेंचर होल्डर की मीटिंग होनी है तो अलग से मीटिंग होगी। इज इट क्लियर? तो यहां पे देयर इज नो डाइल्यूशन। There is no dilution.
होप दिस इज क्लियर नाउ। अब यहां जब हम बात कर रहे हैं, पहले अब सोचते हैं कि अब कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। पहले प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स तो एक्चुअल में रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि महंगे भी पड़ते हैं, ठीक है। वहां पे एक तो रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड रेट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट लगभग सेम रहता है, ठीक। अगर तुम पब्लिक को इशू करने जाओगे तो प्रेफरेंस शेयर्स तो डिबेंचर्स जैसे ही है। उल्टा प्रेफरेंस शेयर होल्डर की रिस्क ज्यादा है तो वो रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड थोड़ा ज्यादा डिमांड करेगा। तो वहां पे अब क्या हो गया, इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे होना है। जब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आया तब से प्रेफरेंस शेयर्स और महंगे हो गए, इसलिए कंपनी बहुत रेयरली प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करती है। कैसा पोजीशन है? बहुत रेयरली प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती हैं। अगर करते भी हैं तो क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता है कि जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन अब यहां हाउ द पोजीशन इज व्हेन इट कम्स टू दीज शेयर्स। अब अगर हम यहां पे बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स के मुकाबले में तो डिबेंचर बेटर है। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम रहेगा, दूसरा इंटरेस्ट मैं अपनी टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर सकता हूं, जबकि प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं किया जा सकता। उसके भी अलावा एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और पे करना पड़ेगा, जो आज की डेट में 15% प्लस 3% एजुकेशन सेस प्लस 10% सरचार्ज करके 16.995% आ जाता है। कंपनी एक्चुअल में महंगी पड़ जाती है। कंपनी महंगी पड़ती है, डबल टैक्सेशन होता है। एक बार कंपनी 30% के रेट से टैक्स भरेगी। इफेक्टिवली अगर सरचार्ज एजुकेशन सेस मिला के करो तो लगभग 34% का टैक्स रेट पड़ता है। 30% प्लस 10% सरचार्ज 33% हो गया, 3% एजुकेशन सेस हो गया, तो लगभग 1% हो गया। 33% का 3% तो कितना हो गया? लगभग 34% टैक्स पड़ता है। ये यूएस के टैक्स रेट के बराबर कर दिया, बट बेस रेट कम रखा। इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग चला के काम करता ना। यूएस में एक फ्लैट रेट 34% तो 34%, यहाँ पे उन्होंने क्या करा 30%, फिर 10%, फिर उस पर भी 2% प्लस 1% मीन्स एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस, वो सब लगा के आखिर में उन्होंने कितना कर डाला? 34% ही कर दिया, ठीक। तो देन चलो उसमें अब यहां पे क्या हो गया, व्हेन इट कम्स टू द प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स तो रिजेक्ट हो गए क्योंकि महंगे पड़ गए। इक्विटी शेयर्स भी महंगे पड़ते हैं, बट वो अलग की बात हो गई। कंपनी के केस में डबल टैक्सेशन होता है, लगभग 45% टैक्स लगभग निकल जाता है। अगर 100% डिविडेंड दे तो और मतलब 45% के आसपास लगभग टैक्स पड़ जाता है। कैसे? 34% पहला, बचे 66 रुपीज। अगर 66 रुपीज का डिविडेंड दे डाला तो कितना होगा उस पर? 17% और। कैसा है? 100 रुपए की इनकम है तुम्हारी, 100 रुपए की इनकम है, उसमें 34% तो पहले निकल गया। कब कितना? पीबीडीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स था सपोज 100 रुपीज, इसमें 34 रुपीज का टैक्स निकल गया, बचा कितना? 66। अब अगर कंपनी से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो इनटू 17% और ले लो तो कि कितना आ गया? कितना है? 11.2। तो 34 प्लस 11.2 लगभग 45% टैक्स पड़ता। कंपनियां महंगी पड़ती, बट एक फायदा होता है, लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। इसकी जगह अगर पार्टनरशिप फॉर्म होती तो 34% से ही काम हो जाता, क्योंकि जो पार्टनर को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता। बट कंपनी में एक बार तो कंपनी ने टैक्स दिया, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा तो वापस से टैक्स लगा, 2 बार टैक्स लगता। तो इसलिए कंपनी महंगी पड़ती है, बट ठीक वट एवर इट इज, उसका फायदे भी हैं, अपने फायदे हैं, इसीलिए लोग कंपनी फॉर्म करता, ठीक है।
अब यहां पे आ गया, हमने प्रेफरेंस शेयर तो रिजेक्ट कर डाले बिकॉज ऑफ दिस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये तो प्रेफरेंस, अभी तो इक्विटी पे भी लगता है, वो अलग चीज है, बट इक्विटी का डिविडेंड तो हम रेगुलेट कर सकते हैं ना। टैक्स लग रहा ज्यादा तो कम दो डिविडेंड, जैसा भी वो रेगुलेट करा जा सकता, बट प्रेफरेंस शेयर रेगुलेट नहीं करा जा सकता ना। वहां पे तो रेट फिक्स हो गया तो हो गया ना फिक्स, खत्म वही बात। देन अब यहां क्या पोजीशन आ रही है हमारे पास में, दैट व्हेन इट कम्स टू द प्रेफरेंस शेयर रिजेक्ट हो गया, बचे क्या रह गया हमारे पास में, इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब ये सोच के देखो, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत पहले, अभी तो काफी टाइम हो गया। There was one company, वो वापस से उन्होंने मर्ज कर दिया। There was one company that was Reliance Petrochemicals Limited. Reliance Petrochemicals Limited. Reliance was actually constructing one refinery in Jamnagar. जामनगर में एक रिफाइनरी कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, एंड फॉर दैट रिफाइनरी दे वर नीडिंग द मनी। तो वो रिफाइनरी उन्होंने आरपीएल में कंस्ट्रक्ट करी थी पहले, अब वो आरआईएल में ही आ गई, कंपनी मर्ज कर दी थी उन्होंने। तो उन्होंने क्या करा, जामनगर में उन्होंने एक रिफाइनरी सेटअप करने जा रहे थे। उस रिफाइनरी को सेटअप करने के लिए उनको पैसा चाहिए था, एंड दे केम विद द आईपीओ ऑफ 6,500 करोड़ रुपीस। ये जब ये 6,500 करोड़ रुपीस का आईपीओ आया था, ये उस टाइम का सबसे बड़ा आईपीओ था। कितने का आईपीओ वो लेके आए? They came with the IPO of 6,500 करोड़ रुपीस। अब यहां पे सोच के देखते हैं, पहला आईपीओ के ही केस का देखते हैं। आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो कितने का आईपीओ? 6,500 करोड़ रुपीस का। अब यहां पे उनको 3 साल लगे, they took 3 years to complete the construction of the refinery। वो 3 साल लगे रिफाइनरी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में। Is it? अब 3 साल में तो ऑब्वियसली जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा तब तक तो प्रॉफिट की तो बात ही नहीं आती ना। अभी तो प्लांट एंड मशीनरी सेटअप होने जा रही है, तो क्या उन्होंने 3 साल डिविडेंड दिया होगा? नहीं। क्या दे सकते थे? दे ही नहीं सकते थे, कंपनीज एक्ट परमिट ही नहीं करता। इज इट क्लियर? ठीक। अब यहां पे 3 साल उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, उसके बाद में जब रिफाइनरी कंस्ट्रक्ट हो गई, बिजनेस स्टार्ट हो गया, उन्होंने आरपीएल को वापस से आरआईएल में मर्ज कर दिया। एक्चुअल में अंबानीज आर वेरी श्रूड बिजनेसमैन, वो पब्लिक को खूब चूना लगाता आता है, उसमें कैसा उन्होंने यहां पे चूना लगाया। एंड बट दे आर श्रूड बिजनेसमैन, हाउ दे डू दीज थिंग्स वो ऑर्डिनरी पब्लिक को एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। इसकी जगह दूसरा काम हो सकता था कि डिबेंचर्स इशू कर दो। अब 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी लगेगा ही ना। अभी पोजीशन है 8-9%, तो बैंक एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक के अगर तुम कंपनी के डिबेंचर सब्सक्राइब करोगे तो 10% इंटरेस्ट तो मांगोगे ना, और इतना तो दे भी रही है, और नॉर्मल है इंडियन सिनेरियो में। अब 10% पे अगर उन्होंने डिबेंचर इशू करे होते तो इंटरेस्ट क्या देना पड़ता था? कितना? 650 करोड़ रुपीस एक साल का, इंटू 3 1950 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट होता था। और इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, तुम्हारे प्रॉफिट हो लॉस हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम। मैं तो लोन दे रहा हूं, मेरे को मेरा ब्याज चाहिए। तुम बिजनेस चलाओ, अच्छा चलाओ खराब चलाओ, ये तुम्हारा काम है। मैंने लोन दिया, मेरे को मेरे पैसे का ब्याज चाहिए। कितना? 1950 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, बट उसके बदले में एक भी पैसा दिया उन्होंने डिविडेंड? नहीं दिया। और जब डिविडेंड देने की बारी आई तो उन्होंने क्या करा? इसको आरपीएल को आरआईएल में मर्ज कर दिया। एक्चुअल में ये रिफाइनरी वो आरआईएल में भी बना सकते थे। यहां पे आईपीओ की जगह वो राइट शेयर इशू कर सकते थे, बट अगर वो ऐसा करते तो इन 3 साल में भी डिविडेंड देना पड़ता ना, क्योंकि वो तो रिलायंस के शेयर होल्डर होते, तो वो तो एग्जिस्टिंग कंपनी थी ना, तो प्रॉफिटेबल कंपनी थी, तो आरआईएल में तो डिविडेंड देना पड़ता था। इन्होंने क्या करा? 3 साल का डिविडेंड दिया नहीं। जब ज्यादा डिविडेंड देने की बारी आई तो इसको आरआईएल में मर्ज कर दिया, एंड फिर वो नॉर्मल डिविडेंड पे आ गया। ठीक, चलो जान दो, वो तो
दे आर एक्सपर्ट इन द स्टॉक मार्केट एंड लोग रिलायंस के नाम पे पैसा आंख बंद करके लगाते हैं नाउ, बट लोगों को नुकसान होता नहीं रिलायंस में इन्वेस्ट करके, नॉर्मल कोर्स में हुआ नहीं है, ज्यादातर लोगों ने पैसा बनाया ही है रिलायंस में इन्वेस्ट करके, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, तो डिबेंचर से बेटर क्या हुआ, इक्विटी शेयर्स। अगर मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां पे बहुत लंबा टाइम लगना है प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल होने में, तो मेरे को क्या करना चाहिए, आई शुड गो फॉर इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स, शुड गो फॉर इक्विटी शेयर्स। इट इज ऑलवेज बेटर। बट दूसरी सिचुएशन देखो, सपोज आफ्टर कंप्लीटिंग द फाइनल, सपोज यू प्लान टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। अब यहां पे तुमने एग्जाम क्लियर कर लिया, तुम्हारा एक फ्रेंड है जिसका फाइनल का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अब तुम्हारे को प्रैक्टिस सेटअप करने के लिए, सपोज यू आर नॉट हैविंग द मनी, तुम्हारे को पैसा चाहिए, दैट योर फ्रेंड टेल्स यू कि एक काम कर, हम साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, पैसा मैं लगाता हूं और 50-50 की पार्टनरशिप करते हैं, ठीक। तो जब वो पार्टनरशिप में पैसा लगा रहा है तो इक्विटी हो गया ना, दिस इज लाइक द इक्विटी, इज इट क्लियर। ओनर्स कैपिटल मतलब इक्विटी। उन्हें बोला कि हम साथ में मिलकर करते हैं, चलो अगर सपोज इंस्टीट्यूट परमिट करता कि कंपनी फॉर्म करके प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो बोलता है 50% शेयर तेरे, 50% शेयर मेरे, पैसा मैं लगाऊंगा, बट ऑब्वियसली सिग्नेचर किसके होंगे, जिसके पास डिग्री होगी। काम किसके नाम पे मिलेगा, तो काम तो तुम्हारे नाम पे मिलेगा ना, ठीक। अब यहां क्या हो गया, अब उसने पैसा लगा दिया, वो जिंदगी भर बैठ के खाएगा, तो काम तुम करोगे। इक्विटी शेयर्स के केस में तो अब वो तो जब तक बिजनेस रहेगा, जब तक कंपनी रहेगी, ही इज हैविंग, ही मे बी गेटिंग, जब तुम अपने को डिविडेंड दोगे तो उसको भी देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी इक्विटी शेयर होल्डर है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, जब प्रैक्टिस सेटअप करते हैं लोग, प्रैक्टिस सेटअप अगर कैपेबिलिटी है तभी प्रैक्टिस कर रहे होगे, सोच रहे होगे, नॉर्मली 1-1.5 साल में प्रॉफिटेबल हो जाती है। तो क्या करना चाहिए था, रादर देन टेकिंग द इक्विटी फ्रॉम हिम, इट वाज बेटर कि बैंक से लोन ले लो ना, बैंक से लोन लो और जब पैसे आए तो चुका दो, बात खत्म हो गई। उसके बाद किसको देना, ना इंटरेस्ट ना डिविडेंड, बात खत्म हो गई। अगर प्रोजेक्ट को कम टाइम लगता है टू बी प्रॉफिटेबल, तो क्या बेटर है, इट इज बेटर टू गो फॉर डेट रादर देन गोइंग फॉर इक्विटी। इज दिस पॉइंट क्लियर। अगर प्रोजेक्ट को ज्यादा टाइम लगना था प्रॉफिटेबल होने में, देन इट इज बेटर टू गो फॉर इक्विटी। अदरवाइज अगर कम टाइम में ही प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है, इट इज बेटर टू गो फॉर डेट। और प्रेफरेंस शेयर तो नहीं, प्रेफरेंस शेयर इज नॉट अ प्रेफर्ड रूट ऑफ फाइनेंसिंग, महंगा पड़ जाता है एंड उसका फायदा नहीं है, या तो इक्विटी पे जाओ या फिर डेट पे जाओ। बट प्राइवेट फाइनेंसिंग में प्रेफरेंस शेयर्स भी चलते हैं, बट वो अक्सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर तो कोई सब्सक्राइब आज की डेट में करता नहीं। तुम हिस्ट्री उठा के देखो, पिछले 10 साल में शायद एक आध रेयर कंपनी होगी जो आईपीओ लेके आई होगी प्रेफरेंस शेयर्स का। सो हमने क्या डिसाइड कर लिया, क्या फाइनली कंक्लूड हो गया, अगर कंपनी को पहला प्रेफरेंस शेयर रिजेक्ट हो गया, अगर कंपनी को ज्यादा टाइम लगता है प्रॉफिटेबल होने के लिए, गो फॉर इक्विटी। अगर कम टाइम में ही प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हो सकता है तो गो फॉर डेट। इज दिस क्लियर? ठीक। अब इसके बाद में कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज हैं दैट वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। ठीक, थैंक यू वेरी मच।